Hello, students. Hope you are not angry with me. It's long that I have been talking to you and have brought something new for you. But don't worry, here it is. Today we are going to do chapter 3 from A Pact with the Sun, the Desert. And now please subscribe and like my channel to show that you're happy. So let's get started. Children, do you know what is a desert? Have you ever visited a desert? Thar Desert is the biggest desert in India. So what is a desert? In a very simple term, it is a place where there is no water, no rainfall, no vegetation and no shelter. Now let us come to the text. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really. हम लोग जो फॉरेस्ट से घिरे हुए रहते जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर ग्रीनरीज है, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक डेसर्ट क्या है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where there is no rainfall and therefore no vegetation grows. आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर केवल बालू ही बालू, चारों ओर बालू ही है, जहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है और उस कारण से कोई पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं. It is hot, dry, waterless and without shelter. यह जगह बहुत ही गर्म होता है, यहाँ सूखा होता है, waterless होता है और रहने की कोई जगह नहीं है. But this is not entirely correct. लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. लेकिन जो लोग डेसर्ट के बारे में पढ़े हैं, उनका कहना यह है कि ये एक बहुत ही सुंदर जगह है. It is a home of a variety of people, plants and animals that have learned to live under very hot and dry condition. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कठोर से कठोर स्थिति में प्लांट मतलब पेड़ पौधे मनुष्य सब रहने का आदि हो गए हैं. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and trees as it is in other climate. यहाँ पर रेगिस्तान जो है, यहाँ पर ज़मीन पर पेड़ पौधे या घास नहीं मिलते हैं, ना ही यहाँ पानी मिलता है, ना ही यहाँ का मौसम दूसरे जगहों के जैसा है. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब यहाँ बारिश होता है, जो कि कभी कभार होता है, तो यहाँ पर डेसर्ट्स में, रेगिस्तान में फूल खिलते हैं और वो फूल देखने में बड़े ही सुंदर होते हैं. The desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. एक रेगिस्तान जो है वो एक बिल्कुल समतल, कभी भी ना बदलने वाला सूखा बालू का जगह नहीं है. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. यहाँ पर रेगिस्तान में पहाड़ भी होते हैं और वेसिस होते हैं, छोटा या बड़ा. Now what is a oasis? A oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and trees a better chance to grow. Oasis जो है वो रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा हरियाली वाला इलाका है, जहाँ पर एक तालाब या एक छोटा सा एक नहर जो है वो पेड़ पौधों को उगने का मौका देता है. Desert may be hot like the Thar or cold like the Ladakh. डेसर्ट जो है वो थार डेसर्ट जो राजस्थान में है उसके जैसा गर्म भी हो सकता है और लद्दाख जैसा कोल्ड भी हो सकता है. लद्दाख का जो डेसर्ट है वो बालू से घिरा हुआ नहीं है, वो पत्थरों का चट्टान से घिरा हुआ है.
उसी से वो बना हुआ है. बट जनरली स्पीकिंग, if a place has little or no water and vegetation, people usually called it a desert. लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी बहुत पानी मिलता है या वर्षा होती है, जहाँ पर वेजिटेशंस मतलब पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसी तरह के जगहों को लोग रेगिस्तान कहते हैं, मरुस्थल जिसको कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स को जो है पानी चाहिए. बिना फूड के आप रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं. द फ्यू प्लांट्स and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. रेगिस्तान के पेड़ पौधे कम पानी में ही गुजारा करना जानते हैं. उन्होंने इस ढंग से ही अपने आप को तैयार कर लिया है. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. ऊंट, वो जिसको हम शिप ऑफ द डेसर्ट कहते हैं, एक बार में ढेर सारा पानी, गैलन्स ऑफ वाटर वो पी सकता है. कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैमल जो है वो बिना पानी का बहुत दिनों तक चल सकता है. द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल. और इसका कारण है कि उनको पसीना बहुत कम होता है. वी स्वेट because we must keep our body temperature constant. ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है, हम लोग को पसीना क्यों आना चाहिए? ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. जब बहुत गर्मी होती है तब हमारा पसीना निकलता है और इससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है ठंडा रख सकते हैं. Camels can stand high body temperature. ऊंट जो है वो बहुत अधिक टेम्परेचर सहन कर सकता है. They do not need to sweat and can therefore retain the water they drink for a long period of time. और इसलिए जो है कैमल को पसीना नहीं होता है, वो या पसीना आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बॉडी टेम्परेचर जो है, हाई बॉडी टेम्परेचर को सहन कर सकता है और इसलिए वो जो पानी पीता है उस पानी को वो अपने शरीर में पकड़ के रख सकता है. द स्मॉलर डेसर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. गर्मी से बचने के लिए ये दिन में छुप जाते हैं नीचे सुरंगों में, जमीन के नीचे, और जब रात होती है तब भोजन के खोज में निकलते हैं. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Other eats plants and seed and get the water they need from the plant juices. Now the desert animals, जैसे और भी जो डेसर्ट जैसे सांप है, बिच्छू है ना, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे जो प्राणी खाते हैं या पेड़ पौधे खाते हैं, उन पेड़ पौधों में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, उसी से वो अपने प्यास को बुझाते हैं. छोटे ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये रात को ही निकलते हैं अपने भोजन के खोज में, दिन में नहीं. डेसर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडैप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो उसी एरिया के ढंग से अपने आप का निर्माण कर लेते हैं, अपने आप को उसी ढंग में ढाल लेते हैं. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम. जो कैक्टस प्लांट है वो अपने स्टेम में पानी स्टोर करके रखते हैं. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. उनका जो जड़ होता है वो ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक होता है, सरफेस
के नज़दीक होता है ताकि जब भी बरसात हो तो वो पानी जल्दी से सोख ले। The major feature of all desert is of course dryness and variation of temperature. लगभग सभी रेगिस्तानों का ये विशेषताएं है कि वो सूखा होता है, वहाँ पर पानी नहीं होता है और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। मतलब रात में को ठंड होता है और दिन में बहुत गर्म होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अब दूसरे जगहों में क्या होता है कि वातावरण में जो नमी होता है वो सूर्य की किरणों को, गर्म किरणों को धरती तक पहुंचने नहीं देता है ना। वो एक एनवलप की तरह काम करता है। The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन रेगिस्तान में ये ब्लैंकेट, ये आवरण जो है मॉइस्चर का, ये नहीं होता है और इसके कारण से दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात को जो है वहाँ का मौसम तापमान बहुत जल्दी ठंड हो जाता है। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। इस पूरे जो हमारे सृष्टि है इसमें रेगिस्तान एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। There are like the dense forest and the deep oceans. जैसे गहरी जंगल है, जैसे बहुत डीप ओशंस है, ठीक उसी तरह से रेगिस्तान भी हमारे इस वातावरण की शोभा को बढ़ाते हैं। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the world. क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म है, वहाँ पानी नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत जहरीले कीट मकोड़े मिलते हैं, तो इस कारण से हमको रेगिस्तान को नीचे नज़रिए से या गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। बच्चों, ये जो छोटा सा कहानी डेजर्ट हम पढ़े हैं, इससे हमें कई सीख मिलते हैं। पहला कि विषम परिस्थिति में हम अपने आप को किस तरह से ठीक रख सकते हैं, और दूसरा, कोई भी वस्तु या जगह बेकार नहीं होता है, सब में सुंदरता है। सुंदरता हम जैसे हरियाली वनों में दिखते हैं, समुंदर में दिखते हैं, ठीक उसी तरह से रेगिस्तानों में भी सुंदरता है। कोई भी इस दुनिया में क्रूप नहीं होता है। With this, we end today. You can see the picture. The desert gives us so many beautiful cactus. We will be back soon. Till then, stay safe, stay at home. Thank you.